Good afternoon, student. Let's start from question number 51. In the Government of India Act 1919, the function of provincial government were divided into reserve list and transfer subject. Which of the following were treated as reserve list? रिजर्व लिस्ट कौन सी थी? इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो एग्जीक्यूटिव के पास थे. ट्रांसफर कौन सी थी? लेस इंपॉर्टेंट जो लेजिस्लेचर के पास थी, जिसमें मेनली इंडियंस थे. ठीक है, तो रिजर्व लिस्ट इंपॉर्टेंट थी. इसमें रिजर्व लिस्ट में पूछा है कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं. जस्टिस, लैंड रेवेन्यू, पुलिस, ये आज भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. और आज भी सबसे नेग्लेक्टेड एरिया कौन सा है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. वो ट्रांसफर लिस्ट के पास था. आंसर वुड बी 1, 3 एंड 4 सी. आई होप समझ आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 52. इन medieval India, the term funum referred to. Answer is coins. I skipped this question. A tough question. If you would have read about it, attempt it. Otherwise, you can skip it. Then question 53. Consider the following freedom fighter: Barind Kumar Ghosh, Jogesh Chandra Chatterjee, Raj Bihari Bose. Which of the following were actively associated with the Ghadar party? Answer is 3, D. If you would have read it, attempt it. If you don't have the knowledge, तो skip it. इसमें cheat code नहीं लगेगा. Next, question number 54. With reference to the proposal of Cripps mission, consider the following statement. First statement is saying the Constituent Assembly would have member nominated by Provincial Assembly and Princely State. Wrong. Provincial Assembly में elected का provision था. Princely में nominated. So this is wrong. Nominated इसमें provincial बोला है. This is wrong. Second, any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign separate agreement with Britain regarding its future status. This is British cleverness. This is correct. ये क्रिप्स मिशन बाय ब्रिटिशर था, तो ब्रिटिशर ने ये इंडिया को डिवाइड करने की पॉलिसी बनाई थी. आंसर इज 2, बी. 55. विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग टेक्स्ट. इसमें आंसर इज बी. इफ यू नो द आंसर, अटेम्प्ट इट, अदरवाइज स्किप इट. आई स्किप दिस क्वेश्चन, ये टफ था. नेक्स्ट क्वेश्चन 56. With reference to Indian history, consider the following pair: historical person and known as. आर्यदेव जैन स्कॉलर नहीं, इसका आंसर है बुद्धिस्ट monk. बाकी 2 आर करेक्ट. दिगनागा बुद्धिस्ट स्कॉलर, नाथमुनि वैष्णव स्कॉलर. आंसर इज ओनली 2 पेयर. इफ यू नो इट, अटेम्प्ट इट, अदरवाइज स्किप इट. ट्रिकी क्वेश्चन था. 57. With reference to Indian history, consider the following statements. First, the first Mughal invasion of India happened ड्यूरिंग द रेन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी. दिस इज रॉन्ग. हमने पढ़ा था इससे पहले इल्तुतमिश के टाइम पे भी हुआ था. पेपर हमने 2021 में क्वेश्चन पूछा था. दिस इज रॉन्ग. इसलिए जरूरी होता है पीवाईक्यू पढ़ना. फर्स्ट स्टेटमेंट डिलीट किया, या तो 2 सही है या 3. थर्ड देखते हैं. मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररी लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. ये मोहम्मद बिन तुगलक का रेन कब तक था? 1351 तक. और जो मंगोल्स का मेजर अटैक हुआ था जिसमें लॉस्ट कर दिया था, it was in around 1390s. ठीक है, this is also wrong. Answer is B, 2 only. Next, question number 58. With reference to Indian history, which of the following were known as Kuladaran? The answer is Sayyid. If you know the answer, attempt it. Otherwise, skip it. Tough question. I had skipped this question. Next, question 59. With reference to Indian history, consider the following statement. इसमें ऑप्शन पैटर्न ये देखे, वी कैन गेस. चीट कोड में हमने पढ़ा है, चीट कोड में, कि देयर इज पॉसिबिलिटी कि एक ऑप्शन गलत हो सकता है. लेट्स सी. पहले सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे. अल्फोंसो दे अल्बुक्यू कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजानगर सल्तनत. दिस इज करेक्ट और बहुत फेमस है, सब बुक्स में. थर्ड, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी established a factory at Madras on a plot of land leased from a representative of Vijayanagar Empire. This is correct. मद्रास में, कलकत्ता में, बॉम्बे में इंग्लिश ईस्ट इंडिया की फैक्ट्रीज थी. Then first, the Dutch established their factories, warehouses on the east coast on land granted to them by Gajapati ruler. I had 2 doubts कि गजपति रूलर्स ने दिया था या नहीं, या फिर ईस्ट कोस्ट पर था या नहीं, क्योंकि आई हैव हर्ड डच की जो फैक्ट्रीज है, मतलब मेरे दिमाग में ये था कि जैसे डच या पोर्चुगीज वगैरह की जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो यनम, माही और क्या कहते हैं गोवा वगैरह ऐसी वाली जगह पर थी. इधर मैंने ईस्ट कोस्ट में आई कुडंट रिकॉल, तो मुझे वो डाउट था. तो आई वाज श्योर अबाउट 2 and 3. आंसर बी. 2 and 3 में मैंने अटेम्प्ट किया था. आई टुक द रिस्क क्योंकि मुझे ये चीट कोड पता था कि 3 स्टेटमेंट हिस्ट्री में ऐसे दिए जाते हैं, ये ऑप्शन पैटर्न, तो देयर इज चांस कि 1 ऑप्शन गलत होगा. तो आई टुक द रिस्क. आई वाज श्योर अबाउट सेकंड, थर्ड, तो आई टुक द रिस्क कि फर्स्ट गलत होगा. देन 60. अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? अगेन
ऑप्शन पैटर्न है जिसमें चांसेस है कि एक क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो सकता है. अकॉर्डिंग टू अर्षद, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? अर्षद इज बेस्ड ऑन जस्टिस सिस्टम. तो जस्टिस सिस्टम पे बेस है, इसलिए मॉडर्न एम्पायर कुड सस्टेन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. इसमें जस्ट पॉजिटिव स्टेटमेंट देखने वो करेक्ट होने चाहिए. फर्स्ट, अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट. जुडिशरी सिस्टम जस्टिस देता है ना कि इनजस्टिस करता है. तो स्लेवरी जुडिशियल पनिशमेंट से नहीं होती, स्लेवरी बिकॉज ऑफ वॉर और डेट, ये फोर्स स्लेवरी होती है. तो इनसे होता है. सेकंड, so this is a wrong statement. Second, if a female slave bore her a master a son, she was legally free. Positive statement, correct. If a person born to a female slave was fathered by her master, the son was entitled to the legal status of its master son. Entitled मिल गया. This is positive. आई होप ये आपको समझ आया होगा. इससे हमें आंसर मिल जाता है बी, 2 and 3 ओनली. नेक्स्ट आप ऑड वन आउट से भी कर सकते हैं. हमने एक पढ़ा था, रकमाबाई का क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में. उसमें एक मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन था और एक एजुकेशन से रिलेटेड था और 2 मैरिज से रिलेटेड ऑप्शन थे. तो बी ऑड वन आउट हमने कर लिया था कि जो अलग एजुकेशन से क्वेश्चन, दैट इज रॉन्ग. सिमिलरली इधर दोनों में फीमेल स्लेव आ रहा है. फर्स्ट इज डिफरेंट, बाकी दोनों सिमिलर है. सेकंड और थर्ड आर सिमिलर काइंड. तो इसलिए ऑप्शन 2 and 3 हम उससे भी गेस कर सकते थे. नेक्स्ट, क्योंकि हमें चीट कोड पता है कि हिस्ट्री में ये ऑप्शन पैटर्न है, मोस्टली 1 2 3 वाले लास्ट ऑप्शन गलत सही नहीं होता है, कोई ना कोई एक स्टेटमेंट गलत होता है. 61, ये यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया था. यूपीएससी ड्रॉप दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स. हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. जिसमें टी प्रोड्यूस होती है. इन ऑल द 4 में टी प्रोड्यूस होती है. आंसर ऑल 4 स्टेट्स. इसमें कंफ्यूज मत होना. इन सब में ऐसी कंडीशंस हैं हिली एरियाज वगैरह में जहां पर टी का प्रोडक्शन हो सकता है. अगर थोड़ा भी मतलब टी प्रोड्यूस हो रही है तो वो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं. तो आंसर इज ऑल 4 स्टेट्स. यूपीएससी रिस्क नहीं लेगा एक गलत करने का. मे बी उधर टी प्रोड्यूस होती ही होगी कहीं ना कहीं इस रीजन में. क्वेश्चन नंबर 63, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट, इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. दिस इज रॉन्ग. आरबीआई रेगुलेट्स बैंक. कॉमन सेंस. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड कंपनीज. व्हाट आर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी? जो कंपनीज होती हैं वो मार्केट से जो डेट बोरो करती हैं, जो मनी बोरो करती हैं, उसको क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेटिंग देती है कि जो कंपनी ने बोरो किया है वो उसकी स्टेबल कंपनी की सिचुएशन क्या है, ए बी ग्रेड. ऐसी कंट्रीज की भी रेटिंग होती है कि वो कितनी एबिलिटी उस कंपनी की रिपे करने की. अगर रिपे करने की रेटिंग अगर अच्छी है तो कम इंटरेस्ट पर उस कंपनी को बोरिंग्स मिल जाती है. तो इसलिए दिस इज रेगुलेटेड बाय सेबी. आई होप समझ आया होगा. तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. ऑप्शन पैटर्न भी ऐसा है जिसमें हमें हिंट मिल जाती है गलत होता है. सेकंड इज, फर्स्ट अगर गलत है तो आंसर इज सेकंड, थर्ड, ये दोनों जनरल स्टेटमेंट है. द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज इक्रा इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. थर्ड, ब्रेकवर्क रेटिंग इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. दीज आर करेक्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन 64, विद रेफरेंस टू बैंक बोर्ड ब्यूरो. दिस वाज आस्क्ड इन 2018 और 2019 का क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज चेयरमैन ऑफ बीबीबी. दिस इज रॉन्ग. सेंट्रल बैंक का अपॉइंटी इज द चेयरमैन. सेंट्रल बैंक अपॉइंटी, not the RBI. This is wrong. Second, BBB recommends for selection of heads of public sector bank. This is correct. Third, BBB helps the public sector bank in developing strategies and capital raising plan. This is correct. ये ऑप्शन का पैटर्न भी इस टाइप का था कि वी कुड हैव गेस्ड कि शायद पॉसिबिलिटी है एक ऑप्शन की रेड फ्लैग होने की. हमने सिर्फ हम टिप्स एंड नहीं पढ़ते, चीट कोड से हम ब्लाइंडली नहीं लगाना है. चीट ये रेड फ्लैग देखने के बाद यू हैव टू यूज योर नॉलेज कि क्या वो रेड फ्लैग सही में इज इट करेक्ट और रॉन्ग. तो आंसर इज 2 and 3 बी. ठीक है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65, विद रेफरेंस टू कन्वर्टेबल बॉन्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी. ऑप्शन है चेंज करने का. कन्वर्टेबल बॉन्ड पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. दिस इज करेक्ट. जनरल स्टेटमेंट. अगर कुछ पॉजिटिव है, एक्सचेंज करने का बेनिफिट मिल रहा है, तो नेगेटिव क्या होगा? कम रेट मिलेगा. दिस इज करेक्ट. सेकंड, द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी affords the bondholder a degree of indexation to rising consumer prices. हाँ, डेट में अनसर्टेनिटी होती है इसलिए लोग इक्विटी में कन्वर्ट करते हैं जिसमें बफर बन जाता है टुवर्ड्स राइजिंग कंज्यूमर प्राइस. दिस इज करेक्ट. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66, कंसीडर द फॉलोइंग. इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द अबव? फर्स्ट, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. दिस इज करेक्ट. प्लीज राइट की लार्जेस्ट कौन सा शेयर होल्डर है. लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन सा है? कॉमेंट. सेकंड, MTCR. इंडिया MTCR का भी पार्ट है, वासीनार ग्रुप का भी पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का भी पार्ट है, बट इंडिया इज नॉट येट पार्ट ऑफ न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप. देन थर्ड,
Is China part of MTCR? Write in the comment section. Third, Shanghai Cooperation Organization. This is correct. पाकिस्तान और इंडिया ने दोनों ने साथ में SCO ज्वाइन किया था. Answer D. 1, 2, 3 are correct. Next, 67. Consider the following statements. First, Vietnam has been one of the fastest growing economies in the world. One of the fastest in the world in recent years. This is correct. इंडिया में भी आजकल प्रोडक्ट्स आपको मेड इन चाइना की बजाय मोस्ट ऑफन मेड इन वियतनाम मिलने लगे हैं. दिस इज करेक्ट. चाइना से अधिकतर कंपनीज वियतनाम शिफ्ट करी है. देन फर्स्ट देखने के बाद थर्ड देखेंगे. वियतनाम इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक टू इट्स इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट. दिस इज करेक्ट. बहुत अच्छा एक्सपोर्ट कर रहा है वियतनाम. फोर्थ, फॉर अ लॉन्ग टाइम वियतनाम्स लो लेबर कॉस्ट एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट, दीज बोथ आर रिलेटिव. इन फैक्टर की वजह से वो ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट हुआ है. लो लेबर कॉस्ट है, स्टेबल एक्सचेंज रेट है. इंडिया में ये चीज अभी मिसिंग है, इसलिए इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनने में थोड़ी डिफिकल्टीज आ रही है. हैव अट्रैक्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स. दिस इज करेक्ट. दोनों मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है. चाइना की वो वियतनाम की स्पेशलिटी मैन्युफैक्चरिंग में है. फिफ्थ, वियतनाम हैज बीन द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन द इंडो पैसिफिक. दिस इज रॉन्ग. इंडिया में सर्विस सेक्टर का ज्यादा है, स्पेशलाइजेशन है. ऐसी वियतनाम में मैन्युफैक्चरिंग का ज्यादा. तो दिस इज रॉन्ग. आंसर इज 1, 3 एंड 4. ऑप्शन सी 1, 3 and 4 is the answer. Next, question number 68. In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation? Price stability किसका फंक्शन होता है? आरबीआई का. ये किससे होता है? मॉनेटरी पॉलिसी से. आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जिसमें रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट होता है, उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है. बेसिक क्वेश्चन. 69. With reference to non-fungible tokens (NFT), consider the following statement. Correct बताना है. They enable the digital representation of physical asset. हाँ, दिस इज करेक्ट. जब NFT 2020 में बहुत चला था, इट वॉज डिजिटल रिप्रेजेंटेशन. आप अपना NFT बना सकते हो, अपनी पेंटिंग का, अपने घर का, हर फिजिकल एसेट का NFT बनने लगा था. डिजिटल रिप्रेजेंटेशन. दिस इज करेक्ट. दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन दैट एग्जिस्ट ऑन ब्लॉकचेन. दिस इज करेक्ट. ब्लॉकचेन आया तो उसके बाद ये NFT का पॉपुलराइजेशन हुआ था. थर्ड, they can be traded or exchanged at equivalency and therefore can be used as a medium of commercial transaction. Don't get confused कि सर इसमें दोनों में can भी है तो जनरल स्टेटमेंट है, करेक्ट हो सकता है, बट दिस इज नॉट करेक्ट. एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन, यानी कि आप NFT देकर कमर्शियल ट्रांजेक्शन में यूज हो रहा है. नहीं, अभी क्या होता है? रुपी एंड डॉलर यूज होता है. NFT अभी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, फिजिकल फनी कॉन्सेप्ट है. अभी वो मीडियम ऑफ, अभी हम एक्सचेंज वगैरह में ना ब्लॉकचेन का यूज, वो बिटकॉइंस का यूज किया है, ना फिर NFT का यूज कर रहे हैं. तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. तो इधर कीवर्ड है मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन. NFT इज नॉट स्टिल अ पार्ट ऑफ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजेक्शन. अब ये सिर्फ फनी कॉन्सेप्ट है जो चल रहा है. आंसर इज 1 and 2. नेक्स्ट, 70. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. इसमें रिजर्वॉयर्स के नाम है, स्टेट्स हैं. इसमें ओनली 1 ओनली 2 पेयर है. ये वाला थोड़ा ट्रिकी था. इसमें रेड फ्लैग्स हम चीट कोड से नहीं पकड़ सकते, इसलिए अगर आता है तो अटेम्प्ट इट, अदरवाइज स्किप इट. Next, question number 71. In India, which one of the following compiles information on industrial dispute closure, retrenchment and layoff in employing workers? ये सब लेबर से रिलेटेड है. ठीक है. इसमें ऑप्शन में क्या क्या है? फर्स्ट, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस. ये भी रॉन्ग. सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जनरल डाटा देती, कंज्यूमर प्राइस राइस एंड ऑल का. B, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ये कंपनीज वगैरह से रिलेटेड डेटा देती है. C, लेबर ब्यूरो. दिस इज करेक्ट. नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम. दिस इज ऑल्सो नॉनसेंस. C, लेबर ब्यूरो इज द करेक्ट आंसर. ये डायरेक्टली है. अगर आप ओवरथिंक नहीं करेंगे, ओनली देन यू कैन अटेम्प्ट इट. सही. ये बहुत बेसिक लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं. 72. इन इंडिया, व्हाट इज द रोल ऑफ कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन? कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या होता है? 4 ऑप्शन है. इसमें 4 में जनरल स्टेटमेंट्स हैं. इसमें डिलीट करना है स्टफ. तो आंसर इसका ए है 1, 2, 3. बट इसको स्किप करिएगा. मैंने इसको स्किप करा था, मेरे लिए भी ये टफ था. मतलब दीज क्वेश्चन आर लाइक स्किपेबल. 73. इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट इन द 5th शेड्यूल, 5th शेड्यूल में कोई एरिया आने से उधर की कम्युनिटी को, ट्राइबल कम्युनिटी को कुछ स्पेशल राइट्स वगैरह मिल जाते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट? ट्राइबल कम्युनिटी सोचते ही हमारे दिमाग में आता है जल, जंगल, जमीन. लैंड, वाटर, फॉरेस्ट आर प्राइमरी ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू ट्राइबल पीपल. तो जल, जंगल, जमीन आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड. जैसे मैंने बताया, ट्राइबल्स के लिए लैंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसका प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट है कि बाहर के लोग आके वो उनका मार्जिनलाइजेशन ट्राइबल्स का नाम, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो दिस इज करेक्ट.
सेकंड, दिस वुड क्रिएट अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी। नहीं, विदाउट कमिंग टू फिफ्थ शेड्यूल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी तब भी होती है। फिफ्थ शेड्यूल में स्पेशल क्या है, क्वेश्चन पूछा है। थर्ड, दिस वुड कन्वर्ट दैट एरिया इनटू यूनियन टेरिटरी। नहीं, उसके लिए अलग प्रोसीजर है। फोर्थ, द स्टेट हैविंग सच एरियाज वुड बी डिक्लेयर्ड स्पेशल कैटेगरी स्टेट। स्पेशल कैटेगरी स्टेट फिफ्थ शेड्यूल पे दोनों का अलग रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The Indian Sanitation Coalition is a platform to promote sustainable sanitation and is funded by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बताया था अगर ऑप्शंस दिए किसी भी ऑप्शन में अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में और ऑप्शन में सेम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम और ऑप्शन में नहीं, जैसे G20 सब में हो या फिर WHO सब में हो, अगर एक स्टेट अलग अलग नाम है ऑर्गेनाइजेशन के तो पॉसिबिलिटी होती है इसकी गलत होने की। सेकेंड, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इज एन एपेक्स बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री का नाम दे दिया, मैंने बताया था मिनिस्ट्री अथॉरिटी अगर एक स्टेटमेंट में है तो दैट इज अ रेड फ्लैग। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी उसके सही होने की, बट अगर सिर्फ एक स्टेटमेंट में उस मिनिस्ट्री का नाम है पर्टिकुलर तो चांसेस है वो गलत हो। इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रोवाइड्स इनोवेटिव सोल्यूशन टू एड्रेस चैलेंज ऑफ अर्बन इंडिया। दिस इज रॉन्ग, एपेक्स नहीं है, नॉन एपेक्स बॉडी है। आंसर इज डी, neither one nor two. 75, which of the following has been constituted under Environment Protection Act 1986? ये 1986 से रिलेटेड पीवाईक्यू में आ चुका है, आई थिंक 2020 में आया था, इसको ये पता होना चाहिए। आंसर इज सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। आई एम गिविंग वन होमवर्क, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये किस एक्ट के अंदर स्टैब्लिश हुआ था? राइट द नेम ऑफ द एक्ट जिसमें CPCB बोर्ड स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, with reference to United Nation Credential Committee consider the following statement। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये क्वेश्चन इसलिए आया था तालिबान ने अफगानिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो किया था, तो उसके बाद उसकी तालिबान की उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था, डिप्लोमेसी वगैरह उसकी रिकॉग्निशन कैसे हो, इसलिए ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज कमिटी सेट अप बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्क्स अंडर इट्स सुपरविजन। ठीक, उसके बाद अब हम थर्ड देखेंगे। इट असेसेस द क्रेडेंशियल ऑफ ऑल यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी, ये सबके यूएन मेंबर्स के सबके क्रेडेंशियल असेस करती है, राइट, बिफोर सबमिटिंग अ रिपोर्ट टू जनरल असेंबली फॉर अप्रूवल। अब इधर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कर रहा है और इधर जनरल असेंबली। आंसर इज जनरल असेंबली इज करेक्ट, सिक्योरिटी काउंसिल इज रॉन्ग। अगर दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट होते हैं तो उनमें से एक करेक्ट होता है, अगर दोनों सिमिलर होते हैं तो दोनों करेक्ट। इफ टू स्टेटमेंट्स दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हैं तो वन हैज टू बी करेक्ट। तो यूनाइटेड नेशन क्रेडेंशियल कमेटी जनरल असेंबली फॉर्म करती है एंड जनरल असेंबली को वो रिपोर्ट सबमिट करता है। ठीक है, सेकंड, इट ट्रेडिशनली मीट्स इन मार्च जून सितंबर, ऐसे टाइमलाइन दे दी तो दिस इज रॉन्ग। लास्ट के टाइम पे जब असेंबली होती है, जब प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं नवंबर दिसंबर, तब ये मीट करता है। आंसर इज ए, 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, which one of the following statement best describe polar code? इसका आंसर इज ए, इट इज एन इंटरनेशनल कोड फॉर सेफ्टी फॉर शिपिंग ऑपरेटिंग इन पोलर वाटर। If you know it, attempt it. Otherwise, skip it. थोड़ा tricky है. I'd skip this question. Next, 78. With reference to United Nation General Assembly, consider the following statements. ये interesting question है. First, the United Nations General Assembly can grant observer status to non-member. For example, Palestine. ये न्यूज में रहता है. Second, intergovernmental organization can seek observer status in United Nations General Assembly. इसका भी करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्वर स्टेटस है। ऐसी काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स वगैरह, जिसका ऑब्जर्वर स्टेटस है। दिस इज करेक्ट। थर्ड, परमानेंट ऑब्जर्वर इन द यूनाइटेड नेशन असेंबली जनरल असेंबली कैन मेंटेन मिशन एट द यूएन हेडक्वार्टर। जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा, इजी है। तो दिस दोनों की एग्जांपल है, तो आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। Next, question number 79. With reference to T-board in India, consider the following statement. अच्छा, इससे पहले ही बता दूं कि इसमें ये ऐसा ऑप्शन पैटर्न आ जाएगा, आपको लगेगा कि इसमें एक रेड फ्लैग हो सकता है। हाँ, देयर इज पॉसिबिलिटी एक रेड फ्लैग होने की, इसलिए नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। मैंने बताया दीज चीट कोड्स कैन ओनली कॉम्प्लीमेंट दिस नॉलेज, बट कॉम्प्लीमेंट नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी है। चीट कोड सिर्फ हेल्प करते हैं, रिप्लेस नहीं कर सकते नॉलेज को। तो हमने नॉलेज, हमें तीनों की नॉलेज है, पैलेस्टीन, इंटरनेशनल अलायंस, बेसिक्स है, तो हम भी अटेम्प्ट कर सकते थे ऑल इसमें। Question 79. With reference to the T-board in India, consider the following statement. First,
टी बोर्ड इज अ स्टेट्यूटरी बॉडी, दिस इज करेक्ट। टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, ये सारे बोर्ड स्टेट्यूटरी बॉडीज हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने बिहार में भी एक बोर्ड बनाने की बात की गई है। राइट द नेम ऑफ दैट बोर्ड, कौन से बोर्ड की बात है। देन उसके बाद इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी अटैच्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। एज आई सेड कि अगर मिनिस्ट्री का नाम दिया जाता है चांस गलत है, तो ये गलत है। राइट द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री जिसके अंडर ये टी बोर्ड वर्क करता है। हिंट दे रहा हूँ, दैट मिनिस्ट्री इज रिलेटेड टू प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स एंड कमर्शियल ट्रांजेक्शन। तो राइट द आंसर। सेकंड अगर रॉन्ग है तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं, फर्स्ट सही है, यानी आंसर होगा ए या डी में से। देन थर्ड इज टी बोर्ड हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलोर। टी बोर्ड है, टी बोर्ड में बेंगलोर में क्यों होगा हेडक्वार्टर? बेंगलोर में किसका? कॉफी का एंड ऑल का। बेंगलोर इज फेमस फॉर कॉफी एंड टी कहाँ की फेमस है? असम की या दार्जिलिंग कलकत्ता की? ये कलकत्ता में बोर्ड है। तो ये कॉमन सेंस लगाना चाहिए था, मैंने भी ऐसे ही कॉमन सेंस लगाकर ये सही अटेम्प्ट किया था कि टी बोर्ड इज व्हाट इट इज डूइंग इन बेंगलोर। बेंगलोर में कॉफी बोर्ड एंड ऑल होना चाहिए, टी बोर्ड का होना चाहिए कलकत्ता या असम में। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। थर्ड भी रॉन्ग है, आंसर इज डी 1 एंड 4। फोर्थ क्या है? बोर्ड और हैज ओवरसीज ऑफिस एट दुबई या मॉस्को। एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए टी बोर्ड के या कॉफी बोर्ड के सबके अलग अलग जगह ऑफिस है। तो दिस इज करेक्ट। 50 विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म ग्रीन वॉशिंग। इसका आंसर, ये बहुत न्यूज में था ग्रीन वॉशिंग उस टाइम, काफी ये प्रमोशन हो रहा था, ग्रीन ग्रीन मूवमेंट चल रहा था, फ्राइडे मूवमेंट्स एंड ऑल। कन्वेइंग अ फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनीज प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड एनवायरमेंटली साउंड। यानी कंपनीज क्लेम करती थी कि हमारा प्रोडक्ट एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, पर उसका जो प्रोडक्शन होता था एनवायरमेंट फ्रेंडली जो प्रोड्यूस करते थे, उसका प्रोडक्शन बहुत ही नॉन एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेस से होता था। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। देन क्वेश्चन नंबर 81, कंसीडर फॉर एग्जांपल, उसका ग्रीन वॉशिंग का एक एग्जांपल इस टाइप का बोल ले सकते हैं कि ईवी व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में पोल्यूशन वगैरह को कम करने की बात की जा रही है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो हम एलिमेंट्स रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, क्रिटिकल मिनरल, तो वो बहुत ही एनवायरमेंटली अनसाउंड, मतलब पोल्यूटेड एक्टिविटी से उसका जो प्रोसीजर है माइनिंग का, वो बहुत पोल्यूटेड है। तो एक तरह से डाइकोटोमी हो जाती है। Next, question 81. Consider the following statements. First, high clouds primarily reflect solar radiation and cool the surface of the earth. क्या high cloud reflect करता है solar radiation को? Second, low cloud have a high absorption of infrared radiation. This is flip. मैं बताया था flip the statement. ये पार्ट 9 में मैंने बता रखा है। पार्ट 9 में आई मेंशन फ्लिप द स्टेटमेंट वाले जो होते हैं, दोनों के मीनिंग एक्सचेंज कर दिए। लो क्लाउड्स रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड राइट वुड बी हाई क्लाउड्स हैव हाई एब्जॉर्प्शन इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, तो आंसर इज डी, नाइदर वन नॉट टू। एज यूपीएससी देखते ऐसे फ्लिप कर देते दोनों के एक्सप्लेनेशन। Next, 82. Consider the following statements. First, BDBD is a large refugee settlement in northwestern Kenya. Maybe correct, maybe incorrect. Second, some people who fled from South Sudan civil war live in BDBD. This is correct, some people. Third, some people who fled from civil war in Somalia live in Dadaab refuge complex in Kenya. Some people. This is also again correct. तो आंसर इज 2 एंड 3 सी। कुछ पीपल तो फ्लड हुए होंगे, रेफ्यूज मिला होगा, तो फर्स्ट को जाने की जरूरत नहीं है। इजी, ये अटेम्प्टेबल क्वेश्चन था। 83, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज विच ऑफ द अबव आर मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किक स्टेट। टर्किक स्टेट यानी या तो टर्की का नेबर हो और टर्किक पॉपुलेशन हो। ठीक है, किस में हो सकती है? फर्स्ट, अर्मीनिया। अर्मीनिया इज रॉन्ग। अर्मीनिया इज अ नेबर ऑफ टर्की, पर जो 20th सेंचुरी का फर्स्ट जेनोसाइड हुआ था, डेट वाज अर्मीनियन जेनोसाइड। यानी टर्की ने उस टाइम पे आफ्टर टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, टर्की हैज किल्ड लॉट ऑफ अर्मीनियन पीपल। तो ऑल्दो टर्की एंड अर्मीनिया नेबर्स, पर काफी सारा दोनों में हॉस्टिलिटी है। जैसे इंडिया पाकिस्तान में है, वैसे अर्मीनिया और टर्की में हॉस्टिलिटी है, क्योंकि अर्मीनिया इज क्रिश्चियन, टर्की इज इस्लामिक, तो उसमें काफी हिस्ट्री है इनकी। तो अर्मीनिया इज रॉन्ग। देन ये भी हम बता सकते हैं, क्रोएशिया एंड रोमानिया, ये दीज वो था यूरोपियन कंट्री, तो इसमें टर्की की पॉपुलेशन कहां से आएगी? तो आंसर फर्स्ट भी गया, थर्ड भी गया, और ये भी फोर्थ भी इज डिलीटेड। आंसर वुड बी Azerbaijan and Uzbekistan. 2 and 5. C would be the answer. Azerbaijan is the closest friend of Turkey, and both the countries have supported Pakistan
इन इंडिया पाकिस्तान हॉस्टिलिटी। ये दोनों टर्की और अजरबैजान वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट। तो आई होप समझ आ गया होगा। इसलिए टर्की इज गुड फ्रेंड विद सिप्रस एंड टर्की एंड सिप्रस की फाइटिंग, टर्की इज हॉस्टाइल टुवर्ड्स सिप्रस। तो इंडिया ने सिप्रस और ग्रीस से अच्छे रिलेशन बनाए हैं, बिकॉज टर्की से हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है। तो इंडिया हैज डेवलप्ड फ्रेंडशिप विद सिप्रस एंड ग्रीस। सिमिलरली इंडिया हैज डेवलप्ड गुड रिलेशन विद अर्मीनिया, क्योंकि अजरबैजान पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो इसलिए इंडिया हैज स्टार्टेड डेवलपिंग डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अर्मीनिया। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। गुजरात हैज लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया, केरला हैज fully solar park, international airport, this is in Cochin, this is correct, this was in news. Third, Goa has the largest floating solar voltaic project in India, this is false, ये न्यूज का पार्ट था, आंसर 2 would be correct। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, with reference to the UN Convention on Laws of Seas, consider the following statements. First, a coastal state has the right to establish its breadth of territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles measured from baseline determined in accordance with convention, this is correct, 12 nautical miles तक होती है। Second, ship of all states, whether coastal or landlocked, enjoy the right of innocent passage through territorial sea, this is correct, ये baseline है सी की। इधर 12 नॉटिकल माइल्स तक ये टेरिटोरियल वाटर होते हैं। टेरिटोरियल वाटर यानी इधर इंडिया का फुल कंट्रोल होता है, इंडिया की नेवी एंड कोस्टल पुलिस एंड ऑल इधर वो गार्ड करती है, 12 नॉटिकल माइल। और इधर इधर से लेकर इधर तक ये 200 नॉटिकल माइल्स, दिस इज ईईजेड। ईईजेड का मतलब इधर इंडिया के पास राइट्स हैं जो मिनरल्स वगैरह या मरीन रिसोर्स होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के। Third is exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles, सिर्फ 200 nautical miles तक होता है, from baseline from which the breadth of territorial sea is measured। तो यहाँ से यहाँ तक 200 nautical miles तक इकोनॉमिक रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करता है। आंसर डी 1, 2 and 3। इसमें ऑप्शन फॉर्मेट पढ़ के लगा कि कोई रेड फ्लैग हो सकता है, तो वी सर्च फॉर द रेड फ्लैग, कोई हमें रेड फ्लैग मिला नहीं। ये बेसिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का, एनवायरमेंट का, तो यू शुड नो दिस क्वेश्चन राइट, 12 नॉटिकल माइल और 200 नॉटिकल माइल्स तक का। Next, question number 86. Which one of the following statement best reflects the issue with Senkaku Island? ये बहुत पॉपुलर सेनकाकू आइलैंड, जापान और चाइना का डिस्प्यूट है। चाइना इसको दियागु आइलैंड बोलता है, दियागु आइलैंड, और ये जापान उसे सेनकाकू आइलैंड बोलता है। ये कहाँ लोकेटेड है? ईस्ट चाइना सी में, पैसिफिक ओशियन। बहुत पॉपुलर डिस्प्यूट है, आंसर बी। China and Japan emerge in maritime dispute over this island in East China Sea. Next, question number 87. Consider the following pairs, country or important reason for being in the news. ये अलग अलग countries हैं। Again, इसका आंसर only 3 pairs है। Shard, setting a permanent military base is wrong. China में military base नहीं है। You can skip this question. इसमें red flag वगैरह only या फिर ऐसे terms नहीं पकड़ पाएंगे। ये number, any extreme statement नहीं है। तो we can identify. we could identify नहीं हो पाएगा, इसलिए you can skip, मैंने ये skip किया था। 88, consider the following pairs, region mentioned in news, country, इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। कैटलोनिया, कैटलोनिया पे पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इट वाज वेरी मच इन न्यूज, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ स्पेन। कैटलोनिया स्पेन का पार्ट है, और स्पेन में इसमें फ्रीडम की अलग होने की बात चली थी। देयर वाज रेफरेंडम कैटलोनिया में कि दैट वी शुड गेट सेपरेट फ्रॉम स्पेन, तो दैट्स व्हाई दिस वाज अ न्यूज। तो स्पेन का पार्ट है, इसलिए दिस इज रॉन्ग। तो अगर स्पेन का पार्ट है तो मैं समझ गया ये इसमें नहीं होना चाहिए, दिस इज मोजाम्बिक। तो अगर एक भी पता है तो दूसरा पता चल जाता है कि ऑप्शन ये स्पेन में गलत दे दिया, तो दिस इज रॉन्ग। देन फर्स्ट, एनाटोलिया को टर्की बोलते हैं, दिस इज वेरी पॉपुलर, दिस इज करेक्ट। अम्हारा और इज आल्सो पार्ट ऑफ इथियोपिया। काफी डिस्प्यूट था इजिप्ट इथियोपिया में, इसलिए ये टर्म पूछ लिया गया। ओनली 2 पेयर इज करेक्ट। कुछ स्टेटमेंट ऐसे नॉलेज से आने चाहिए, बेसिक क्वेश्चन होते हैं। 89, with reference to Indian laws about wildlife protection, consider the following statement. First is, wild animals are sole property of government. This is wrong. Stream statement. Third, apprehension. Apprehension का मतलब क्या होता है? Doubts. अगर कोई भी doubt है of protected wild animal becoming a danger to human life is sufficient ground for its capture or killing. सिर्फ doubt के basis पे can you kill any wild animal? This is wrong. This is also extreme. Second, when a wild animal is declared protected,
such animal is entitled for equal protection whether it is found in protected areas or outside. This is correct. अब जैसे लाइंस वगैरह भी होते हैं तो वो प्रोटेक्टेड एरिया, कभी कभी प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर आ जाते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब उनको अब प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा. द प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू द एनिमल जहां पर भी हो. दिस इज करेक्ट. ऑप्शन बी सेकंड टू ओनली वुड बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90. Certain species of which one of the following organism are well known as cultivator of fungi? Answer is ant. If you know, attempt it, otherwise skip it. ये क्वेश्चन skip किया था मैंने. Next, question number 91. Consider the following pairs: site of Ashoka rock edicts and location of state in the state of. ये options है. If you know the answer, attempt it, otherwise skip it. मैंने ये वाला skip किया था. जो ओनली वाले क्वेश्चंस होते हैं जो 2023 में पेयर में पूरा सेंटेंस पूछा गया है, उन सेंटेंसेस में इजी पड़ जाता है क्योंकि उन सेंटेंस में ओरिजिन या फिर ओनली, नंबर ऐसे वर्ड दिए जाते हैं जिससे आपको हिंट मिल जाती है. बट इधर आपको यू डोंट गेट द हिंट, आप चीट कोड इधर लगाना टफ हो जाता है, तो इसलिए ये वाले क्वेश्चंस, ये वाले आप स्किप कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, ऐसे वाले जो फुल सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन है यू कैन अटेम्प्ट, या पेयर में ही फुल सेंटेंसेस होते हैं तो हम कुछ उसमें चीट कोड लगाकर कुछ फिगर आउट कर पाते हैं. Question number 93. Which one of the following statement about Sangam literature in ancient South India is correct? Sangam literature related. First, Sangam poems are devoid of reference of material culture. Devoid. क्या कुछ भी mention नहीं है Sangam material culture के बारे में. This is too extreme wrong. Second, the social classification of Varna was known to Sangam people. Varna system is too entrenched in our social system. Vedas, Sangam, सारे literature में Varna system है. तो South India में भी there was Varna system. This is correct. Third, Sangam poems have no reference of to warrior ethic. This is wrong. Mention है heroic acts की warrior की. Fourth, Sangam literature refer to magical forces as irrational. Wrong. Irrationally मानते थे, मतलब वेदास में भी नेचर वगैरह को वर्शिप करते हैं, या जो फेनोमेना होते थे नेचुरल फेनोमेना कुछ, तो उसे रैशनली माना गया था, इरेशनल नहीं. तो दिस इज रॉन्ग. नेगेटिव स्टेटमेंट. Then 94. Yog Vasisht was translated into Persian by Nizamuddin Panipati during the reign of. ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी आप रिस्क लेकर पहले क्वेश्चन आ चुका है अशोका के ऊपर, एक 2 लाइंस दी गई थी पहले मैंने ट्रिक्स में भी बताया था. 2 लाइंस दी गई थी रिलेटेड टू टॉलरेंस एंड ऑल, तो उसमें ऑप्शन में था अशोका, समुद्रगुप्त एंड ऑल, तो पॉपुलर कौन सा था? अशोका. तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अकबर इसका आंसर है, तो पॉपुलर वाला ट्रिक चीट कोड लगाया जा सकता है. Next question 95. The world's second largest statue in sitting pose of Ramanuj was inaugurated by the Prime Minister of India at Hyderabad recently. Which one of the following statement correctly represent the teaching of Ramanuj? Ramanuj was Bhakti Saint, जैसे आदि शंकराचार्य, कबीर and all. So the best means of salvation was devotion, Bhakti. ये पढ़ते ही पता चलेगा आंसर है. 96. The Prime Minister recently inaugurated the new circuit house near Somnath Temple at Veraval. Which of the following statement are correct regarding Somnath Temple? First, Somnath Temple is one of the general correct. A description of Somnath Temple was given by Al-Biruni. हाँ, जब foreign invader आए थे उनके साथ Al-Biruni आया था, and Al-Biruni wrote about it कि इतना सारा लूट हुआ था. Third, Pran Pratishtha of Somnath Temple, installation of present day temple, was done by प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन. ये बहुत पॉपुलर कंट्रोवर्सी है, ये प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने किया था. जवाहरलाल नेहरू ने लेटर लिखा था कि बिकॉज ऑफ सेक्युलरिज्म यू शुड नॉट गो एंड इनॉग्रेट इट, बट ही स्टिल राजेंद्र प्रसाद वेंट और इन्होंने इनॉग्रेट किया था. आंसर ए 1 and 2 वुड बी करेक्ट. दिस इज वेरी पॉपुलर. क्वेश्चन नंबर 97. Which one of the following statement best describes the role of B cells and T cells? आंसर डी, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज कॉज बाय पैथोजन. ये जो बाहर वाइट ब्लड सेल्स में टी सेल्स होते हैं, तो बाहर से जो पैथोजन वगैरह होते हैं उनको फाइट बैक करने में हेल्प करता है. बेसिक एनसीईआरटी जनरल क्वेश्चन है, पता होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 98. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस, नैनोपार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर. एक्सट्रीम स्टेटमेंट. नैनोपार्टिकल्स एग्जिस्ट इन द नेचर. Second, nanoparticles of some metallic oxide are used in the manufacture of some cosmetic. General statement correct. Nanoparticles of some commercial product which enter the environment are unsafe for humans. This is correct. Some commercial product में unsafe हो सकते हैं. Answer D 2 and 3 are correct. Next 99. Consider the following statements.
DNA barcoding can be a tool of assess the age of plant or animal. Second, distinguish among species that look alike, यानी आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है. थर्ड, आइडेंटिफाई द अनडिजायरेबल एनिमल और प्लांट मटेरियल इन प्रोसेस फूड. मैंने बताया था अगर दो सिमिलर स्टेटमेंट्स होते हैं तो पॉसिबिलिटी है वो दोनों सही हो, पर अगर दो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आर गिवन तो उनमें से एक स्टेटमेंट इज करेक्ट. आई एम रिपीटिंग अगेन, इफ टू सिमिलर स्टेटमेंट्स आर गिवन चांसेस आर बोथ आर करेक्ट, बट इफ टू कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आर गिवन चांसेस इज ओनली वन ऑफ देम वुड बी करेक्ट. तो आंसर इज 2 and 3, क्योंकि दोनों सिमिलर स्टेटमेंट्स हैं, दोनों आइडेंटिफाई की बात कर रहे हैं. आंसर इज डी, 2 and 3 are correct. Next, 100. Consider the following: carbon monoxide, nitrogen oxide, ozone, sulfur dioxide. Excess of which of the following in the environment causes are causes of acid rain? Acid rain में कौन सा वो होता है? Ozone is मतलब very above, तो ओजोन नहीं हो सकता अगर हमने 3 डिलीट किया. आंसर बी या सी, 2 and 4. 4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड. ये बहुत पोल्यूटिंग कंपाउंड होता है जो एसिड रेन में कंट्रीब्यूट करता है, नेचर में होता है तो वो ऊपर जाके इट कॉजेस पोल्यूशन. आंसर इज बी, 2 and 4. ये बेसिक क्वेश्चन है, आई वाज एक्सपेक्टिंग आपको आना चाहिए. सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ पेपर 2023. आई विल वेरी सून अपलोड पेपर 2023 ऑल्सो. ये 2022 हो गया, 2023 और 2024 ये दोनों मैं अपलोड करने वाला हूँ. तो प्लीज फॉलो दिस चैनल, पूरा लेक्चर सीरीज सुनिए. यू वोंट रियलाइज इट नाउ, बट पेपर देने के बाद प्लीज डोंट रिग्रेट कि हमने वो सीरीज पूरी देखी होती. तो प्लीज एक बार ये सीरीज देखिए, इट वुड हेल्प यू अलॉट. तो बाकी आपको कुछ डाउट्स वगैरह पूछने हैं, यू कैन मेल मी, मैं अपना मेल आईडी अटैच कर दूंगा. टेलीग्राम चैनल का ग्रुप भी ज्वाइन करिए, जितने नोटिफिकेशन होते हैं आई सेंड इट देयर, तो जिसका लिंक आई विल अटैच इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. बाकी कोई डाउट वगैरह है आप पूछ सकते हैं. ऑल्सो इफ यू लाइक द सेशन, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. आपको भी हेल्प हो, उन्हें भी हेल्प हो, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ज्यादा वीडियो फास्ट लाने का. बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. थैंक यू.